Hello, am I audible? Morning, sir. Morning. Apology, I was facing some IT issue because of which I was not able to dial. So I have to change the laptop. हाँ जी. क्या रेशियो हमने किया था लास्ट टाइम? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो. ठीक है. कुछ डाउट क्वेश्चन उसमें? And any questions in this? ठीक है. I take that as no. Next is inventory turnover ratio. There's cost of sales divided by average inventory. Now, since more inventory means more money tied up, and hence higher the ratio, the less inventory the firm is keeping in relation to its sales. So, the inventory turnover ratio ITR लिख रहा हूँ. So this is cost of sales divided by average inventory. So यहाँ पे average same concept है. जब हमने किया opening balance plus closing balance divided by 2. And then numerator में sales नहीं है, cost of sales है. Same logic because जो inventory होती है, that is recorded at cost, not at selling price. की क्लियर है सबको? जो इन्वेंट्री होती है वो आपके बैलेंस शीट में बुक्स में जो होती है कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं होती. बिकॉज योर इन्वेंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट नॉट एट सेलिंग प्राइस, दैट इज व्हाई इन द फॉर्मूला दिस इज इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. Any questions in this?
रिकॉर्डेड एट कॉस्ट मींस जितने भी हमने खरीदा हुआ है सामान। हाँ, जितने का खरीदा प्लस जितने का आपको उसको कॉस्ट बनाओ, उसको इन्वेंट्री को बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में जितना आपका खर्चा हुआ। ओके। This inventory, what we are calling is finished goods inventory. Both. It could be finished good, it could be unfinished good, it could be a work in progress. Anything that you as a business want or probably put in your balance sheet as inventory can come here. Any other question in this before I move further? Okay. Now, so suppose अगर ये and this raw material will be calculated at the price at which you have bought. Yeah, every inventory would be at the cost. Be it a finished good, be it a raw material, every inventory would be at the cost. After 1 year, it will also be in the purchase price only. So suppose अगर आपने परचेज किया है और उसको, so suppose if you purchase a raw material and if you not added any value to this, of course it will be recorded at a purchase price. But let's assume if you have a semi-finished product, which means if you have purchased a raw material and then you've done some processing, you've added some value on that, so it will be recorded at the cost, not at the purchase price. Cost means purchase price plus the value addition that you have done to that, uski jo cost hai. Is that clear, Deepak? Yes. See, my So now, thought was that if you have bought 100 rupees, borrowed 100 rupees to purchase that material, and you are not, and interest for 1 year you have paid, will it also be accounted or it will be accounted separately? Separately, because we discussed earlier that the interest and the other kind of financing expenses are not directly attributable to, can't be directly attributed to the production or the cost of the production. So indirect cost है ना आपके. मैंने एक, मान लो लेट्स से 50 लाख का लोन लिया, उसमें से कुछ लोन को रॉ मटेरियल के लिए यूज किया, कुछ लोन को मैंने प्लांट बनाने के लिए यूज किया, कुछ मैंने और किसी चीज के लिए यूज किया, तो मैं किसको कितना कैसे क्वांटिफाई करूंगा कौन सी चीज कहाँ जा रही. And if I'm borrowing 100% to get the raw material, देन अगर आपका मैनेजमेंट आप एनालाइज करना चाहते हो कर लो, बट आपको अकाउंटिंग उसमें नहीं दिखेगा वो. मतलब अगर आप अकाउंटिंग इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हमको देखना चाहिए नॉर्मली. करेक्ट. अगर आप इकोनॉमिक एज ए मैनेजमेंट देखना चाहते हो तो आप उसको कर लो, बट फ्रॉम एन अकाउंटिंग कैलकुलेशन और फ्रॉम ए जो आपके थियोरेटिकल फॉर्मूलेज है उसमें वो इंक्लूड नहीं होता है. Okay. हाँ सुभाष. गुड मॉर्निंग सर. सॉरी मेरे जो मीटिंग सॉफ्टवेयर है वो काफी टाइम से रन नहीं हो रहा. Subhash, I can't hear you very clearly. No, I can't hear you. आप सुन सकते हैं? Slightly better. हेलो. हेलो, हाँ बोलो. मेरा मीटिंग सॉफ्टवेयर मेरा रन नहीं हो रहा था, चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से मुझे काफी मशक्कत करना पड़ा और मुझे लेट हो गया. तो क्या मुझे थोड़ा सा ब्रशअप कर सकते हैं?
अभी just start ही किया हमने. We just on the first ratio only. Okay, thank you. Any other question? So my inventory turnover ratio is equal to cost of sales divided by average inventory. Let's assume if this is 5/1. vis-a-vis, let's assume 2/1. vis-a-vis 0.5/1. ठीक है. So पहले A और B को डिस्कस करते हैं. हाँ जी. So 5/1 means what? If you spend 5 rupees on producing something, but the inventory that you're holding on is only one. Average inventory that you're holding on is only one. Or if I understand the other way, on average for holding 1 rupee inventory, you will end up in incurring a cost of 5 rupees. In situation B, for holding an average inventory of 1 rupee, you will end up in incurring a cost of 2 rupees. Between A and B, which one is better? And between A and B, which one is better? हेलो सर, फिर से बोलिएगा. ए क्या शो कर रहा है? 1 रुपए की इन्वेंट्री पे 5 रुपीज की कॉस्ट. एंड बी इज 1 रुपए की इन्वेंट्री पे 2 रुपए की कॉस्ट. According to my opinion, sir, A is better, na? Okay. So A is better. Any other view? बी सर. क्यों? हमें एक इन्वेंटरी पर हमें कॉस्ट 2 ही रुपया लग रहा है, इसी वजह से मिनिमम कॉस्ट. इसी वजह से 20 सफिशिएंट. ठीक है. Any other view or thought on this? This cost of sales is the final price, final value of the product. No, it's not a selling price. It's a No, cost. it's the cost, final cost of the product. Final cost, which include direct cost, not the indirect cost. And average inventory is Opening plus closing divided by 2. And A or B? No? Okay. So between A and B, from a management perspective, B is more helpful, favorable situation, because for creating an inventory, I have to incur only a cost of 2 rupees. For creating inventory of 1 rupee, I have to incur a cost of 2 rupees. Whereas in situation A,
for every 1 rupee inventory on an average, I have to incur a cost of 5 rupees. So if I have tomorrow have to increase the inventory, I have to incur more cost. I have to probably put in more money to let that happen. Okay. So funding चाहिए ज़्यादा, working capital ज़्यादा. This is basically a conversion cost you are talking about. It's a kind of a conversion cost. In that case, we can say that inventory B has a more finished good as compared to A. A has less raw material, and we incur more cost in making it a saleable product. So, with this, we can. I'm not able to understand how we can drive this, because you are saying that average inventory includes both finished as well as raw material and all that. It can have more raw material. मान लो ये सिर्फ finished का है. अभी के लिए मानो सिर्फ finished है. No, this company only purchases direct finished good and sells the finished good. Trading business में कोई manufacturing नहीं करता. अब बात करते हैं. So then you understood how situation B is favorable. This does not include raw material, only and includes both are following the same principle of valuating the inventory. Both means what? दोनों एक ही कंपनी है, उसकी सिचुएशन ए सिचुएशन बी है. Okay. These are not two companies. Now, if I suppose it's a manufacturing firm larger than a trading firm, and a manufacturing firm and denominator में आपका फिनिश गुड्स है और लेट्स से रॉ मटेरियल भी है, तो भी दीपक इफ जो आप बोल रहे थे कन्वर्जन वाला, ठीक है, सो 1 रुपी इन द डिनोमिनेटर मीन्स ऑन एन एवरेज कंपनी का जो इन्वेंट्री है जिसमें कुछ रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कुछ फिनिश गुड भी हो सकता है, कंपनी को ऑन एवरेज 1 रुपी का इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए 2 रुपए खर्चा करना पड़ता है, और सिचुएशन ए में कंपनी को 1 रुपए का इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए 5 रुपए का खर्चा करना पड़ता है. तो फ्यूचर में अगर कंपनी को अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज करना है, तो लेट्स से इन्वेंट्री को 10 रुपए पे लेके जाना है, लेट्स से कोई कंपनी का एक सीजन सेल का लेट्स से कंपनी इनटू सम बिजनेस जो जिसमें दिवाली का कुछ प्रोडक्ट्स, लेट्स से क्रैकर्स या ऐसे कोई प्रोडक्ट्स जो दिवाली सीजन में बहुत एग्रेसिव सेल हो, तो कंपनी को दिवाली सीजन के स्टार्ट होने से पहले अपनी इन्वेंट्री को बहुत ऊपर लेके जाना पड़ेगा, करेक्ट, so that in that peak season they can supply the product into the market for that aggressive demand. ठीक है. Now अगर कंपनी को 10 रुपए का इन्वेंट्री क्रिएट करना है तो 50 रुपए का कॉस्ट इंकर करना पड़ जाएगा. बट सिचुएशन बी में अगर कंपनी को 10 रुपए की इन्वेंट्री लेके जानी है तो सिर्फ 20 रुपए में काम हो जाएगा. This is what we're trying to understand between situation A and situation B. दोनों ही केस में मैं सेम इन्वेंट्री लेवल मेंटेन कर पा रहा हूँ, बट सिचुएशन ए में मुझे उस इन्वेंट्री को मेंटेन करने का ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है. सिचुएशन बी में सेम लेवल ऑफ इन्वेंट्री कम खर्चे में हो जाती है. The only logic I can drive from is that in case of A, the conversion cost is high, and B, it is less. Not necessarily conversion cost, but वही बता रहा हूँ आपको. Conversion cost could be one of the reason to do this. There could be a lot of other reasons also. The other reasons could be, let's assume. So what is conversion cost? Conversion cost होता है रॉ मटेरियल को अपना प्रोडक्ट बनाने में जो लेट्स से मैंने क्लॉथ खरीदा, क्लॉथ और मैं शर्ट बनाता हूँ, तो क्लॉथ को शर्ट तक ले जाने में जो मैंने खर्चा किया उसको कन्वर्जन बोलते हैं. अपने रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने में जो प्रोसेस पे जो खर्चा होता है.
वो तो वो एक तो एक यही हो गया ना, कॉस्ट ऑफ सेल, हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ डायरेक्ट कॉस्ट। हम्म तो वही बोल रहा दीपक, उसका ये ए और बी में जो डिफरेंस है दैट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी द कॉस्ट ऑफ दिस कन्वर्जन। ओनली तो डायरेक्ट कॉस्ट ही होगा ना, तो इसमें टोटल हाँ नथिंग डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट कॉस्ट। ही, हाँ डायरेक्ट ही ले, ठीक है। सो और भी रीजंस What हो other सकते हैं। reasons could be? सॉरी, Means, what other reasons could be? हाँ वही समझा, वही बता रहा था मैं। सो जैसे अदर रीजंस कुड बी sometime company start following a different they start following a different process of जैसे for some of the clients what we have seen, they move into GIT, so just in time concept एक होता है, ठीक है। These are more to do with operations management. So let's assume मैं कंपनी हूँ और आप मेरे सप्लायर हो, मैं आपसे रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ दीपक। सो अर्लियर व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं आपको एक 500 के क्वांटिटी के ऑर्डर्स देता था। तो 500 यूनिट्स के जब मैं आपको क्वांटिटी के ऑर्डर देता था तो आप मुझे शिप करते थे, ठीक है। क्योंकि मैंने एक बल्क ऑर्डर आपको दिया है, ठीक है, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट काफी कम हो जाती है और मैं आपसे नेगोशिएट कर पाता था, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक 500 यूनिट का ऑर्डर दिया है, ठीक है। दूसरा जो फिर आप जब मुझे शिप करते थे, मतलब जो कैरेज इनवर्ड होता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता था, वो भी कम हो जाता था, क्योंकि आप आप अपनी फैक्ट्री से मेरी फैक्ट्री पे चाहे 500 यूनिट भेजो, चाहे 10 यूनिट भेजो, लॉरी तो एक ही आने वाली, तो लॉरी का जो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। दीपक यू विद मी? Yes, yes. So one trip of lorry will incur a fixed cost, but the fixed cost get divided on 500 units, or the fixed cost get divided on 10 units. अगर मैं 10 यूनिट्स मंगाता हूँ तो बहुत डिफरेंस आ जाए, ठीक है। सो ये मेरा हिस्टोरिकल प्रोसेस था। अभी मेरे को किसी किसी जापानीज कंसल्टेंट या किसी ने काइजन वाइजन पढ़ा दिया और मुझे बोला कि जीआईटी इंप्लीमेंट कर दो जस्ट इन टाइम। तो मैंने क्या करा, मैंने जीआईटी कर दिया इम्प्लीमेंट। जस्ट इन टाइम में क्या है कि अब मैं आपको बल्क ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा, जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी कम होती जाएगी वैसे मैं थोड़ा 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 ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो पहले महीने में आपको 500 का एक ऑर्डर प्लेस करता था, अब मैं आपको महीने में 100 यूनिट के या 50 यूनिट के 100 ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ठीक है। दीपक यू विद मी टिल दिस? दैट इज व्हाट जीआईटी Yes, इज, दैट yes. आप इन्वेंट्री क्रिएट मत करो, खत्म हो थोड़ा सा मंगा लो, खत्म हो थोड़ा सा मंगा लो। सो इसमें मैंने दो चीज लॉस हो गई मुझे। फर्स्ट लॉस मेरा ये हुआ कि मैं आपसे जो नेगोशिएशन, जो मेरी बार्गेनिंग पावर थी प्राइसिंग की, बिकॉज मैं आपसे 500 यूनिट से एक साथ खरीदता था, अब वो 500 यूनिट से नीचे आके 50 यूनिट्स पे रह गई, तो मेरी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की मैं आपसे प्राइसिंग बेस्ट करवाता था वो अब हट गई। तो दैट इज, उसकी वजह से मेरी कॉस्ट ऊपर चली गई। लेकिन आपने 50 यूनिट के ऑर्डर 100 बार शिप करे मुझे, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है मुझे वो 100 बार हिट करेगी, जो पहले एक बार हिट करती थी। चलेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर, और ये सारे डायरेक्ट कॉस्ट है ये। इसमें कुछ नथिंग टू डू विद कन्वर्जन है, इट्स जस्ट you change your operation style and hence you ended up in this mess, ठीक है। So But this inbound freight will also be accounted in the part of conversion costs, no? no, it's not my conversion cost, it's my raw material purchase price ना। कन्वर्जन कॉस्ट थोड़ा होती है, कन्वर्जन कॉस्ट तो Okay. रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में होती है, तो रॉ मटेरियल को खरीदने के प्राइस में जोड़ा होता है ना। Yes, yes. ठीक है। Any other doubt in this?
तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम यही रीजन होता है ये मेस के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कंपनी जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करती है तो कंपनी को ये लॉसेस होते हैं, बट एक कंपनी को बेनिफिट भी होता है। जो बेनिफिट यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट करने की वजह से कंपनी का जो वेयर हाउस रेंट होता है वो बच जाता है, क्योंकि कंपनी अब स्टोर नहीं करेगी, वो छोटा छोटा यूनिट मंगा रही है, तो कंपनी का जो वेयर हाउस रेंट होता है वो सेव हो जाता है। ये क्लियर है आप लोगों को? पहले मैं 500 यूनिट एक महीने में एक बार मंगा रहा था, तो मुझे कहीं तो वो स्टोर करनी पड़ेगी, तो लेट्स से मैंने वो वेयर हाउस रेंट पे ले रखा था। अब क्योंकि मैं 500 यूनिट नहीं मंगा रहा हूँ, मैं छोटी छोटी क्वांटिटीज मंगा रहा हूँ, तो मुझे वो वेयर हाउस का रेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी फैक्ट्री में 50 यूनिट तो मैं कहीं पे भी स्टोर कर सकता हूँ, तो वो रेंट कम हो जाएगा। इज एवरीबॉडी विद मी टिल दिस पॉइंट? Yes. Yes. सो नाउ, बट ये जो कॉस्ट की सेविंग होती है ये तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये जो सेविंग है ये पॉजिटिव इफेक्ट इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता। ये इसका इम्पैक्ट आपका आता है एनपीएम में, नेट प्रॉफिट मार्जिन में आता है इसका इम्पैक्ट, जो मैं पीछे सिखा कर रहा हूं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एनपीएम में आता है। यानी अगर कंपनी जेआईटी की तरफ जाती है तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो खराब हो जाता है, यानी ऊपर चला जाता है। सो हम यहां से सिर्फ कंक्लूड नहीं करते, अगर कंपनी हमें रीजन पता लगता है कि जेआईटी की रीजन है, when we do forensic and we understand that GIT is the reason because of which the company inventory turnover ratio has gone up. Okay, then before finally concluding, we also analyze the NPM. और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन में हमें पता लगता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ऊपर चला गया है, तो यानी एक रेशियो जो खराब हुआ है उसका कॉम्पनसेटिंग इफेक्ट दूसरे रेशियो में दिख गया है। So then this is not a concern for the management. In fact, NPM is more important ratio to the shareholders vis-a-vis the ITR. And then we do the analysis कि कौन सा रेशियो, लेट्स अज्यूम अगर ये थोड़ा सा ऊपर गया है, बट उसके थोड़े से ऊपर जाने की वजह से ये ज्यादा ऊपर चला गया, देन ऑफ कोर्स द कंपनी इज एबल टू इंप्लीमेंट दिस इफेक्टिवली। बट लेट्स अज्यूम आईटीआर ऊपर गया, एनपीएम ऊपर ही नहीं गया, तो वो जेआईटी जो है वो इज अ बैड स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी। एनी क्वेश्चंस? सर इसमें आपने जैसे बताया कि वेयर हाउसिंग जो वो स्टोर नहीं कर रहा है उसका जो पैसा है बच रहा है, बट सर वो अगर डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में कम कम करके मंगवाएगा, बट उसको तब भी तो एक्सपेंसेस पड़ेंगे उसके हिसाब से। जैसे लॉरी के सर जैसे बार बार मंगा रहा है तो उसके भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं। सॉरी परमित, प्लीज रिपीट दैट। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने उसमें बताया कि वेयर हाउस की जो वो अगर वो कम यूनिट मंगा रहा है तो वेयर हाउस का रेंट उसको सेव हो रहा है, बट अगर वो सर छोटे छोटे यूनिट में मंगा रहा है, जैसे 50 यूनिट में बार बार मंगा रहा है, तो उसको उसका भी तो सर लॉरी का भी तो रेंट पड़ेगा बार बार। हमने डिस्कस किया ना मन में, तो वो पार्ट आपने सुना नहीं क्या? मिस हुआ क्या आपका? यू डायली लेट? नहीं 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 सर, मिस नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि सर वेयर हाउस का रेंट उसमें मतलब कवर हो जाएगा कि मतलब जैसे वेयर हाउस का रेंट कम होगा उससे कि जैसे वो बाबा यूनिट मंगाएगा कि एडजस्ट हो जाएगा वो उसी में। तो वही हमने डिस्कस किया ना कि अगर आप 50 यूनिट्स के बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस करोगे तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट वैल्यू, उसी की वजह से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगा ना। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक।
बट जो उसका कॉम्पनसेटिंग बेनिफिट होगा, जो रेंट में सेविंग होगा, वो तो इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता नहीं है, क्योंकि रेंट तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो वो कहीं और इफेक्ट इनडायरेक्ट देता है कॉस्ट है. उसमें. ओके. हाँ, तो इसलिए मुझे दूसरा रेशियो भी जाके देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस इन अ होलिस्टिक वे. ओके सर, अंडरस्टूड. तो इसलिए ये बुक्स में थियोरेटिकली में सब गलत लिखा हुआ है कि ये रेशियो हायर है तो गलत है. ऐसा भी होता है कभी कभी, ये रेशियो हायर चला जाता है फिर भी कंपनी के लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि एनपीएम ऊपर चला जाता है जस्ट इन टाइम की वजह से. तो वो जो फॉरेंसिक पार्ट है, जो प्रैक्टिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं, वो मैंने आपको समझाया कि इस रेशियो को एनपीएम से कैसे लिंक करके यू गेट अ more conclusive picture analysis rather than just looking at inventory turnover ratio on a standalone basis. Hanji, any other doubt, question on this? ठीक है, I take that कोई क्वेश्चन और नहीं है. And this What about this 0.5 and 1? हाँ, वही बता रहा हूँ अभी 0.5. So before we go to 0.5, so let me change the color. अब ये रेड वाला जो मैंने एरो लगाया है नीचे, ये एक बार लाइन पढ़ लीजिए. I don't want to delete anything. So जो higher the ratio है, ठीक है, this is sometimes gets contradictory into this जो अभी हमने किया है. जैसे सेड कभी कभी ये हायर रेशियो भी बेटर हो जाता है बिकॉज उसका इफेक्ट एनपीएम में दिख जाता है. ठीक है, now coming back to the this 0.5 वाला situation. So let's say situation C. And is this possible? Take a minute and think, is this possible? If yes, under what scenario? So what does this mean? पहले तो वो सोचो एक बार. Take a minute and try and interpret what does this 0.5 upon 1 would mean. And then the next is that possible? And if the answer comes out to be yes, then the next question is how or under what scenario. So there are 3 questions. Just think through this before we discuss. So first question, what does this mean? What does 0.5 upon 1 mean?
More inventory and less sales. More inventory and less sales. Sales कहाँ से पता लगेगी? 1 Yes, रुपीज talking के more. इन्वेंट्री में 0.5 कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है। एक मिनट फजलू, हाँ दीपक, इसमें सेल्स कहाँ से पता लगेगी? See, more sales कहाँ से बढ़ गया? How have you concluded more sales? This is the finished product. We are okay. Even if I take that, let's assume it's a finished product, तब भी sales का conclusion कहाँ से आया? मेरे को वो नहीं समझ आ रहा. We are producing inventory at the cheaper rate, sir. We are producing inventory at the cheaper rate, but practically possible नहीं है ना ऐसा कि आप 1 रुपए की inventory को 0.5 पे बना दो. ऐसा possible है? No, sir. यही ट्रिक है. तू कुछ बोल रहा था? सेम कॉन्सेप्ट है कि जो 1 रुपीज के इन्वेंट्री में 0.5 कॉस्ट है इनकर्ड हो रहा है, बट हाउ ये पता नहीं। हाँ जी, कोई और? Hello. Yes, Subhash. So confused. सुभाष, आपका आवाज नहीं क्लियर आ रहा है. मैं बोल रहा हूँ सर, अब क्लियर है आवाज? हेलो. I could barely. हाँ. मैं बोल इतना रहा हूँ क्लियर. हाँ. अब आवाज क्लियर है? हाँ बोलो. मैं बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ तो भी समझाऊंगा ना, तभी क्लियर होगा. तो मैं तभी पूछ ही रहा हूँ सबसे कि what's your view on situation C? Means this. The company has ample of inventory with it, and the company is marginally producing additional inventory. So that is the I think that's why cost is less, because company is not able to sell enough inventory. Means 1 minute. This आप finished good कब produce करते हैं? When you have orders to sell it. या हम pile up कर सकते हैं inventory means finished goods को. Just I'm driving the concept of sales to this. दोनों तरीके से होता है ना. In 99%, you create an inventory before you have an order of sales. In fact, when you have already received an order, then you don't create an inventory because you produce and then sell. The inventory is never created in those situations. Means considering this is a finished inventory in denominator, then can't we correlate this directly with sales, because you are not able to generate the sales. मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे कोरिलेट किया तुमने इन्वेंटरी को सेल से. That's what I wanted to understand. In that, the simple logic is that आपको when you have got the order, then you will preparing, means creating some goods, a saleable good की फॉर्म में. बट आपके पास जब सेल नहीं है तो what does this means that you hire. But situation A, B, C में तीनों में डिनोमिनेटर में 1 रुपए की इन्वेंट्री ही है. So it's not inventory has gone up. The problem is not a denominator, problem is the numerator. That's what I'm trying to understand. When we are saying situation C means sales has gone up vis-a-vis situation A or B, then in all three situations the denominator, which is inventory, is same. It's not going up.
राइट दीपक? This ratio says that how many times you're converting your inventory in a saleable product. No, Isn't it? No. I never said that. The concept is not clear in that case. मैंने ये नहीं बोला जो अभी आपने बोला. मैंने ये बोला this ratio means. I have not said that you are told. I'm just deriving means. So going back to the drawing board, what I said, this ratio means, or this ratio helps us to understand for situation A that for 1 rupee inventory, if I have to maintain an inventory of 1 rupee on an average, then I have to incur a cost of 5 rupees. Similarly, situation B is if I have to create an inventory of rupees 1, I have to incur a cost on an average 2 rupees. I'm not trying to link this into इससे कितना सेल्स आया, इससे कितना कन्वर्जन आया, वो मैं लिंक ही नहीं कर रहा. तो अब यहाँ पे इस स्टेप पे कोई डाउट है तो बताओ बिफोर आई गो फॉरवर्ड. सुभाष, जो तुम पूछ रहे थे कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, वो मैं दोबारा भी रिपीट किया. इसमें यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए. सर प्लीज दोबारा देखो. 1 रुपए की इन्वेंट्री पे 5 रुपए का कॉस्ट है, 1 रुपए की इन्वेंट्री पे 2 रुपए का कॉस्ट है. ओके. ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. 1 रुपए के कॉस्ट पे 5 रुपए का इन्वेंट्री है, तो 1 रुपए से 2 रुपए का तो मैं समझ गया. नेक्स्ट. Yeah, Deepak, you with me till this point? I have not understood this numerator. It's if considering it's in finished good. Now to convert this finished good into a saleable product. वो इस रेशियो में डिस्कस नहीं हो रहा. वो इस रेशियो में डिस्कस नहीं हो रहा. नहीं, means what probably this is very basic. I'm not able to grasp this concept. एक इन्वेंट्री को सेल करने के finished inventory, we can say that this is a finished good ready for sale. रेडी फॉर सेल के बाद भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं सेल करने के लिए. That's what I'm trying to explain to, like advertisement, like sales commission, like फैक्ट्री से शिप करना पड़ेगा ऑफिस में, कैरेज आउटवर्ड, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है. बहुत सारे ऐसे वो होते हैं जिसमें but those expenses are not direct costs associated with this product, which means those are not covered in the numerator, correct? And if those are not covered in the numerator, how can I link के inventory को sales में convert करने के लिए क्या efficiency है वो उस ratio से पता लग रही है. Let's assume think of an example जहाँ पे think of an example जैसे कि एक इंडस्ट्री ऐसे है जहाँ पे आपने इन्वेंट्री बना दिया, बट अनलेस यू गिव अ कमीशन टू द सेल्स एजेंट वो सेल ही नहीं होगा प्रोडक्ट. सो फॉर मी एक इन्वेंट्री को सेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कि मैं कितना कमीशन दे रहा हूँ, टू अंडरस्टैंड कि आई एम ऑपरेटिंग एट अ गुड लेवल और आई एम ऑपरेटिंग एट गुड लेवल. सिर्फ इन्वेंट्री बना के कुछ नहीं होने वाला. सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ get out of that mode कि this ratio is trying to explain to you कि हाँ इन्वेंट्री से कितना सेल्स है. I think this is where the problem start, because आप वहीं पे अटके हुए हो कि इस रेशियो से इन्वेंट्री से कितना सेल्स होता है, कितना कन्वर्जन होके सेल्स होता है, वो पीस से बाहर आ जाओ. दिस रेशियो इज ओनली ट्राइंग टू टेल यू कि मैं अपनी बैलेंस शीट पे अगर 1 रुपए की इन्वेंट्री रखता हूं
तो ऑन एवरेज उस 1 रुपए की इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ता है, फुल स्टॉप। उससे को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एफिशिएंसी है वो यहां से पता नहीं लग रही है। अगर वो तो वो यही बता रहा है ना, नहीं वो तो यही बता रहा है ना कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस फाइनल प्रोडक्ट इन्वेंट्री के बाद जो आपको मार्केटिंग एक्सपेंस, वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, व्हाटएवर यू आर इनकरिंग, वी आर इनकरिंग जस्ट टू से वांट टू सेल इट। करेक्ट। So which means that expenses helps in increasing or decreasing the efficiency of the sales, correct? Yes. And So which means if I have to understand as a management how good I am or how bad I am to convert my inventory into sales, I should be taking those expenses into consideration or those initiatives into consideration. In that case, if this is the logic, that is C is the best one, then sorry, in that logic, then C is the best one. We are incurring less cost. Yeah, I agree, but C practically possible है, तो वही तो मैंने क्वेश्चन पूछा, is C mathematically theoretically मैंने लिख दिया, but is that possible? वही मेरा क्वेश्चन था ना, that's why we started out. If yes, how and when, we'll come to the C, but here be clear हो गया कि this is not linking to the sales part, जो थोड़ा सा confusion चल रहा है आपको। अगर मुझे इन्वेंट्री को अगर मुझे सेल से लिंक करना होगा ना, तो मैं ये रेशियो देखूंगा जो बुक्स में नहीं होता है, कि हम लोगों ने ऐसे क्रिएट किया जस्ट टू अंडरस्टैंड। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, सेल्स कर देता हूँ नीचे। नाउ दिस इज अगेंस्ट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बट एज आई सेड वी आर नॉट लुकिंग एट थ्योरी। ये रेशियो मैं देखता हूँ, सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे मैंने कॉस्ट को हटा दिया, अब सेल्स को ले आया, पूरी सेल्स को ले आया जो एक्चुअल सेल्स हुई। ये रेशियो को देखता हूं टू अंडरस्टैंड जो आप बोल रहे हो, कन्वर्जन वाला पीस, एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस टू इंक्रीज द सेल्स। दीपक? Yes. When after getting it the concept of C, then we can. सर सी पे आते हैं। तो सी मींस 1 रुपए की इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती है। दीपक, वी हैव डिस्कस दैट। Yes. अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1 रुपए की इन्वेंट्री जो कॉस्ट पर रिकॉर्ड हो रही है, उसके न्यूमरेटर में 1 रुपए की इन्वेंट्री का 0.5 रुपीज आ जाए? वो भी तो कॉस्ट ही है। Yes. So ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है? So the scenario is, I think कृतिका ने थोड़ा सा इसको टच किया था, but I think then she again got off track जो वो आंसर दे रही थी, कि आपके पिछले साल का जो क्लोजिंग पिछले साल की इन्वेंट्री है, which means my opening inventory in this formula is very high, और इस साल की इन्वेंट्री इज वेरी लो। इस साल आपने जितना भी बनाया सारा बेच दिया, ठीक है। सो पिछले साल की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा थी और इस साल की इन्वेंट्री बहुत कम थी। उस सिचुएशन में सी रेशियो आ जाता है, मैथमेटिकली ये रेशियो सी आ जाता है। करेक्ट। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल का स्टॉक बहुत ज्यादा बचा हुआ था, तो इस साल हमारा ज्यादा खर्चा नहीं आया, तो एवरेज इन्वेंट्री 1 मेंटेन हो गई। करेक्ट। ओके। क्योंकि जो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो तो पिछले साल के पीएनएल में आ चुकी होगी। जो वो हायर इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो पिछले साल के पीएनएल में आ चुकी होगी, तो इस साल के पीएनएल में वो नहीं आई होगी। तो कॉस्ट जो न्यूमरेटर है वो लोअर साइड पे रहता है, बट डिनोमिनेटर में वो हायर इन्वेंट्री आके ओपनिंग बैलेंस में बैठ जाती है, जिसकी वजह से रेशियो ऐसा हो जाता है। तो ये जो कॉस्ट है प्रीवियस ईयर का होगा तब मेंशन?
प्रीवियस ईयर का हो ही नहीं सकता ना। सब ये जो इन्वेंटरी प्रीवियस ईयर का जो रिकॉर्डिंग होगा उसका जो कॉस्ट ऑफ होगा प्रीवियस ईयर का, तो वो भी तो आएगा। अरे फजलूर, अभी तो हमने बात किया फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय ओपनिंग हाँ। बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस है ना। हम्म तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन से ईयर की है? ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के बीच की कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, हम्म या ओपनिंग बैलेंस से पूरा पिछले वाली कॉस्ट ऑफ सेल्स है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पीएल अकाउंट का ही प्रीवियस ईयर का यहाँ पर करंट इस ईयर में शो कर दिया होगा। ऐसा आप बोल रहे हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मेरे हिसाब से वो होगा नहीं ऐसा। जैसे कि इस साल खर्चा ही नहीं हुआ, खर्चा कम हुआ, तो इस उस साल ईयर का खर्चा, हिट। इस साल का खर्चा कम हुआ वो पॉसिबल है, बट आप जो मुझे बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में जो इन्वेंट्री है ये पिछले साल की हो सकता है ओपनिंग बैलेंस में आ जाए। अब आप जो ये बोल रहे हो, आप बोल रहे हो पिछले साल की कॉस्ट भी यहाँ पे आ सकती है क्या? मैं बोल रहा हूँ वो नहीं आ सकती। क्लियर सर। हाँ जी, एनी अदर डाउट? सर अगर हम लोग सी सिचुएशन को कंसिडर कर लेंगे तो हम लोग क्या मानेंगे, सी बेस्ट है तीनों में अगर ये वाली सिचुएशन आती है तो? देखो मैथमेटिकली हाँ, बट फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव ना, because of two reasons. First, the C situation practically possible नहीं होगी except one situation जो मैंने आपको बताया, ठीक है? यस सर। तो और वो सिचुएशन is not something that आप लॉन्ग रन में सस्टेन कर सकते हो, which means आप ईयर ऑन ईयर में से सस्टेन कर लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो एक ईयर कभी आ गई तो ठीक है, it can't run for a consistent trend. Is there any difference between cost of? Yeah, Manmeet, I can ask later on. ओके। तो सर मैं यही कह रहा था बस, अगर ये वाली सिचुएशन अगर आती है इन तीनों में तो हम यही कंक्लूड करेंगे सी बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। सी को आप बाहर रखो, सी तो मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लेके 99% बी में से आपको कंपैरिजन करना होगा। ओके सर, ओके। As I said, सी थियोरेटिकली बेस्ट है, बट सी में प्रैक्टिकल लाइफ आएगा नहीं। एक्सेप्शनल केस है मतलब? एक्सेप्शनल केस नहीं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ वो, ये तो मैंने मैथमेटिकल नंबर्स डाल दिए ना, रियल लाइफ इन नंबर्स ऐसे ट्रांसफर नहीं होंगे कि सी वैल्यूज आ जाए, एक्सेप्ट वन सिचुएशन जो मैंने बताया, ओपनिंग बैलेंस बहुत हाई था। ओके सर, अंडरस्टूड। Is there any difference between cost of sales and cost of goods sold? थोड़ा सा डिफरेंस होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप, because theoretically what inventory turnover ratio, what in books it's cost of goods sold divided by average inventory. हेलो सर, कॉस्ट शीट के थ्रू इनको समझा। नहीं, मेरे को नहीं जाना वहां पे कॉस्ट शीट में, ठीक है? सो दीपक, मान के चलो सेम ही है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स आप मान के चलो सेम ही है, ठीक है? अब अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल में जाके डिफरेंस अगर समझना है विच इज नॉट रिलेवेंट टू दिस रेशियो, तो उसका डिफरेंस भी बता देता हूँ। बट यहाँ पे व्हेन वी आर सेइंग रेशियो,
मैंने जहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा है वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज जहां से भी हम बैलेंस शीट से, पीएनएल से, या जो भी सॉफ्टवेयर से, डेटाबेस से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पिक करेंगे, वो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वहां पे यूज नहीं करते हैं. सो when you're doing any analysis, your cost of goods sold and cost of sale for to be same. Okay, so hence I do not want to create problem for you guys by bringing these by telling you ये दो अलग अलग concepts हैं. ठीक है, so that's first part. अब अगर let's say मुझे फिर भी theoretically pure theoretical discussion के लिए जाना है and say let's understand the difference, even if that minor difference. The difference is this now. The difference is when you say cost of goods sold, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मैं जो मैंने प्रोडक्ट बेचा उसमें जो जो माल लगा हुआ है, जो जो प्रोडक्ट लगा हुआ है, जो रॉ मटेरियल लगा हुआ है, उसकी कॉस्टिंग लेता हूं मैं. उसके ऊपर जो मैंने वैल्यू एडिशन किया, let me हाँ, so let's assume मैं I'm a manufacturer of the shirt. मैंने शर्ट के लिए क्लॉथ खरीदा, बटन्स खरीदे, थ्रेड खरीदा, ऐसे सब चीजें खरीदी, और मैंने ये सब सामान का कॉस्टिंग मेरा 500 रुपए है, और मैंने इस 500 रुपए को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं. बट ये शर्ट नहीं बनेगा. शर्ट इसके बाद बनाने के बाद मैंने एक लेबर को, एक टेलर को हायर किया, उसको मैंने 200 रुपए दिए, और इन सब से उसने एक शर्ट बना के दी मुझे. ठीक है, सो मेरा जो मैंने फाइनल शर्ट बेची है उसकी कॉस्टिंग, लेट्स से मैंने जो शर्ट बेच रहा हूँ वो 2000 रुपए की शर्ट बेच रहा हूँ, बट वो शर्ट की मुझे कॉस्टिंग 500 का रॉ मटेरियल प्लस 200 रुपीज की 200 रुपीज की मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. ठीक है, सो मुझे 700 रुपीज की कॉस्टिंग पड़ी उस सेल्स की एट अ डायरेक्ट कॉस्ट लेवल, बिफोर आई एड अप एनी इनडायरेक्ट कॉस्ट, और आई एड अप एनी इनडायरेक्ट कॉस्ट और एनी काइंड ऑफ एन अदर कॉस्ट. ठीक है, बट मुझे एट अ डायरेक्ट लेवल इस शर्ट की कॉस्टिंग मुझे 700 रुपए पड़ी, 700. दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स. मैंने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इस शर्ट में जो गुड्स लगे हुए हैं उनकी कॉस्ट 500 रुपीज है. ये डिफरेंस आपको यूज नहीं करना है. ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको फॉर योर नॉलेज बताया है. अगर कोई बहुत आपको पीछे पड़ जाए कि डिफरेंस बता के दिखाओ, ठीक है, इट्स समथिंग वेरी यू नो somebody is trying to ascertain your ability, तो वहां पे आपको बताना है. अदरवाइज फ्रॉम एन अकाउंटिंग कैलकुलेशन जितना भी एनालिसिस वगैरह होता है ये इंटरचेंजेबल यूज किया जाता है. हाँ जी, कोई डाउट? एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, am I audible? Yes, sir. You're audible. Okay, last time any question on this issue before we close? Not now. Anybody else? ठीक है, so in case no, हाँ जी, ये पढ़ लीजिए लिमिटेशन. You discuss this, but just go through the slide and let me know in case you're not understood. We've discussed these points.
जी, ये सेम ही है जो मैंने जस्ट इन टाइम का एग्जांपल दिया आपको। आप लार्ज क्वांटिटी परचेज करते थे, फिर आपने छोटा छोटा क्वांटिटी परचेज करना शुरू कर दिया, तो आपका कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है और जो आपको डिस्काउंट्स मिलता है वो आपके हाथ से चला जाता है। Very common problem, especially a lot of companies which is getting influenced by Japanese investments and Japanese operation management, specifically on the Kaizen side. They generally get impacted by this. Any question on this slide? Okay, I take that as no. देख लीजिए, भी सेम है, तो सेम मतलब बता रखा है डिफरेंट वर्ड्स में. just go through this and let me know कुछ है. So it increases your operating expense that we've discussed. ऑर्डर स्मॉल हो जाते हैं, ठीक है, सेम एग्जैक्टली जो पीछे पड़ा वही है, बट थोड़ा डिफरेंट वर्ड्स में बता रखा है. सो जस्ट जी, any question on this slide? Last time, any questions? ठीक है. So this completes our inventory turnover ratio. इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड ये कल करेंगे. सो ये वाला रेशियो है दीपक, जब कन्वर्जन की बात करें तो विल डू दिस टुमारो. ये होगा नहीं 5-10 मिनट में. सो जस्ट बिफोर वी क्लोज फॉर द डे, सो हमने आई थिंक काफी सारे रेशियोज कर लिए हैं, ठीक है. सो एज आई सेड अर्लियर आल्सो, depending, I'm focusing more on the forensic analysis side, but if your interest is only from a calculation perspective, or if interest is to solve some numerical forms, so something like this, if you're interested on those, because historically आप लोगों को, most of you would have been trained or have been explained ratio through that model. So मैंने क्या करवा रखा है आपके पोर्टल पे, there are questions, उसकी solutions भी हैं step by step, वीडियोस में भी हैं, ठीक है. तो उसका सॉल्यूशन है ना, गलत सब है, आंसर गलत सब आ रहा है. आपका सही आ रहा है ना? मैंने क्या, हाँ, तो आप अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपने सही किया तो ठीक है, डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस, ठीक है. सो वो प्रैक्टिस प्लीज पैरेलली करते जाओ. सो व्हाट आई मीन पैरेलली मींस, जैसे हमने एक रेशियो कर लिया, ठीक है, 2 रेशियो कर ली, सो rather than waiting towards the end कि मैं सारा एक साथ करूंगा या करूंगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, because we will do many ratios. So I would suggest a parallelly, जितना एक वीक में हम लोग रेशियोज कर रहे हैं, so on an average हम 1 से 2 से 3 रेशियोज कर रहे हैं एक वीक में. So अगर आपने वो 2-3 रेशियोज को पर वीक अगर आप कंप्लीट करते जाओगे, be you looking at videos or you looking at those calculations or the case study, I leave it to you whichever form is good for you. So please उसको अपने end पे parallel करते जाइए, and so that it gives you a comfort अगर आपको calculation side में interest है. If somebody is looking purely from analytical side, I think वो तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है. चलिए, anything else guys before we close? Hello. Yes, Subhash.
कल मॉर्निंग में क्लास में बस आवाज नहीं आ रहा है आपका। अब आ रहा है? हाँ बोलो। हेलो सर, मैं पूछ रहा हूँ कल कल मॉर्निंग में क्लास है क्या? कल यार मुझे नहीं पता, आप लोगों ने डे जो चूज करे थे वो डेज पे होगा, बार बार मुझे नहीं पता होगा। So if you've chosen Wednesday and Thursday, I think you've chosen Wednesday and Thursday, so yes, it automatically becomes yes. ओके, थैंक यू। ठीक।